YouTube channel. Today we will learn chapter 6 Life Processes. How do we tell difference between what is alive and what is not alive? If we see a dog running or a crow chewing cud or a man shouting loudly on a street, we, we know that these are living things. What if the dog or the cow or the man were asleep? We would still think that they were alive. But how do we know that? We see them breathing and we know that they are alive. What about plants? How do we know that they are alive? We see them green. Some of us will say, but what about the plant that have leaves or colors other than green? They grow over time, so we know that they are alive. Some will say, in other words, we tend to think of some sort of movements, either grown, related, or not, as common evidence for being alive. But a plant that is not visibly growing is still alive, and some animals can breathe without visible movement. So, using visible movement as the defining characteristics of life is not enough. What are the life process? So guys, life process क्या है? The maintenance functions of living organisms must go on even when they are not doing anything particular, even when we are just sitting in class, even if we are just asleep, this maintenance job has to go on. The process which together perform this maintenance job are life process. मतलब हम दिन में जो भी काम करते हैं और उसके कारण हमें हमारी बॉडी स्टेबल रहती है, मतलब जैसे कि हमारा एविडेंस है कि हम जिंदा है, वैसे ही प्लांट के लिए क्या एविडेंस है कि वो जिंदा है? तो प्लांट रेस्पायर करते हैं, वही एक एविडेंस है, से हम पता कर सकते हैं कि प्लांट इज ऑल्सो एन अलाइव। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि प्लांट कैसे जिंदा है, मतलब प्लांट कैसे रेस्पायर करते हैं? तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके हमारे लिए फ्रेश ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। सो दिस इज द प्रोसेस नोन एज लाइफ प्रोसेस, मीन्स द प्रोसेस ऑफ लाइफ। Here are some questions, so let us solve. What is diffusion if is insufficient to meet the oxygen requirement of multicellular organisms like human? So, can you give this answer? If you know the answer, please comment in the comment section. So, this is your homework, that solve this answer and comment in the comment section. Now let us go ahead to nutrition. What is nutrition? Nutrition is a thing, the source of energy and material is the food we eat is known as nutrition. मतलब हम जो भी खाते हैं वो सब न्यूट्रिशन कहलाता है। How do living things get food? Living things कैसे food लेते हैं? Generally, the requirement of energy and material is common in all organisms, but it is fulfilled in different ways. Some organisms use simple food material obtained from inorganic source in the form of carbon dioxide and water. These organisms are called autotrophs.
There are many type of nutrition like autotrophic nutrition, heterotrophic nutrition, then scavengers and all others. But we have to learn here autotrophics and heterotrophics. So what is autotrophic nutrition? Autotrophic nutrition is a nutrition which make their own food by the process of by the help of sun, water, and they make their own food by the sun, water and nutrition. Now, what from where did they all get this? So, sun gives them sunlight and give, by the help of a stomata, sunlight is transferred to the parts of a body. So, autotrophics make their own food by the help of carbon dioxide that they get from the stomata, sunlight gets from chlorophyll, then waters and other essential minerals from the roots. मतलब जब सन होता है तब वह अपने सनलाइट प्लांट्स को कैसे लेते हैं, तब प्लांट्स क्लोरोफिल की हेल्प से सनलाइट लेते हैं, स्टोमाटा की हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और रूट्स के अंदर एक जाइलम और फ्लोएम करके एक चीज़ है जिससे वह प्लांट्स वाटर और मिनरल्स लेते हैं और उसे अलग अलग जगह पे ट्रांसफ़र करते हैं. Now let us go ahead to heterotrophs. This is the important. So always remember this formula. 6CO2 plus 12H2O give rise to C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O. Let us now see what actually happened during the process of photosynthesis. You have to remember these three steps: absorption of light energy by chlorophyll, conversion of light energy to chemical energy, and splitting of water molecules into hydrogen and oxygen, reduction of carbon dioxide to carbohydrates. These steps need not take place one after the other immediately. For example, desert plant takes up carbon dioxide at the night and prepare the intermediate which is acted upon by the energy absorbed by the chlorophyll during the day. Let us see how each of compounds of the above reaction are necessary for photosynthesis. If we carefully observe the cross section of a leaf under the microscope, you will notice that some cells contain green dots. ये जो आप ग्रीन डॉट्स देख रहे हैं इसमें वो क्या है, तो वो है क्लोरोफिल. और इसको क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं, which contain
क्लोरोफिल मतलब क्लोरोप्लास्ट है जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है। Let us do an activity which demonstrates that chlorophyll is essential for the photosynthesis. तो ये एक्टिविटी देखेंगे। टेक अ potted plant with variegated leaves, for example मनी प्लांट और कोरोटन। एक प्लांट लो, वो मनी प्लांट होना चाहिए या फिर कोरोटन जैसे। आपने कोरोटन तो देखा नहीं होगा, अगर देखा होगा तो आपको पता होगा कि वो कैसा होता है। और मनी प्लांट ही ले लीजिए वरना। कीप द प्लांट इन डार्क रूम, उसको डार्क रूम में रखिए 3 दिनों के लिए। ऑल द स्टार्च गेट्स अप यूज, जब आप उसको 3 दिनों तक याद रखेंगे तो उसका पूरा स्टार्च यूज्ड हो जाएगा। नाउ कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर 6 आवर, अब उसको 6 घंटे के लिए सनलाइट में रखो। प्लग द लीफ फ्रॉम प्लांट, मार्क ग्रीन एरियाज इन इट, उनमें से दो जितने लीफ ड्रॉप ले लीजिए और उसके अंदर ये जो ग्रीन कलर दिख रहा है वो मार्क कर दीजिए। डिप द लीफ इन बॉइलिंग वाटर फॉर फ्यू मिनट, एकदम गर्म पानी में उसको रख दीजिए। आफ्टर दिस इमर्स इट इन अ बीकर कंटेनिंग अल्कोहल, उसके बाद एक बीकर में कुछ थोड़ा अल्कोहल लीजिए और उसके अंदर डिप कर दीजिए। केयरफुली प्लेस द अबव बीकर इन द वाटर बाथ एंड हीट टिल द अल्कोहल बिगिंस टू बॉयल, और उसे तब तक गर्म करिए जब तक अल्कोहल बॉयल नहीं हो जाता। वॉट हैपन्स टू द कलर ऑफ लीफ, अब लीफ का कलर क्या हो जाता है। वॉट इज द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाता है। नाउ डिप द लीफ इन डाइल्यूट सॉल्यूशन फॉर आयोडीन, अब लीफ को डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन में रखिए थोड़ी देर के लिए। टेक आउट द लीफ एंड ड्रेन्स ऑफ द आयोडीन सॉल्यूशन, अब उस लीफ को लीजिए और बाकी का जो आयोडीन सॉल्यूशन है वो रिंस कर दीजिए, मतलब निकाल दीजिए। ऑब्जर्व द कलर ऑफ लीफ एंड कंपेयर दिस विद द ट्रैकिंग ऑफ, अब उसका कलर देखिए आप, कलर चेंज हो गया। आप इससे क्या कंक्लूड करते हो कि जिस जगह पे स्टार्च था वो वो मार्क करता है कि जो जो स्टार्च था वो कहाँ कहाँ पे है, और पता चलेगा आपको कि स्टार्च कैसे बनता है। नाउ लेट अस स्टडी हाउ प्लांट ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड, अब हम पढ़ेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ऑब्टेन होता है। सो गाइस, this is stomatal pore. This green color structure you see here, it is chloroplast, and these two are guard cells. So what guard cells do? Guard cells first guard cells will open and make a small stomatal opening. From there they take the essential carbon dioxide and do not take the oxygen. Then it closes, and after some time it again opens and remove the oxygen. So now let us see here. The opening and closing of the pore is a function of a guard cell. The guard cell swells when water flow into them. गार्ड सेल्स तब खुलते हैं जब उसके अंदर से जब वो वाटर को पूरी तरह एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एंड कॉजिंग द स्टोमेटल पोर टू ओपन, और स्टोमेटल पोर होता है वो ओपन हो जाता है। सिमिलरली द पोर क्लोजेस इफ द गार्ड सेल श्रिंक, जब गार्ड सेल श्रिंक हो जाता है तब स्पोर ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। सो लेट अस डू एक्टिविटी 6.2।
ये जो आप बीकर दिख रहे हैं वो वॉच ग्लास है, उसके अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, लिख लीजिए। और उसको एक पॉट के ऊपर, जहाँ एक पॉट है उसके ऊपर एक ऐसा जार रख दीजिए। टेक टू हेल्दी पॉटेड प्लांट विच आर नियर बाई सेम साइज। दो हेल्दी पॉटेड प्लांट लीजिए, मतलब पॉट वाले प्लांट जो सेम साइज के हो। कीप देम इन डार्क रूम फॉर 3 days। उसको 3 दिनों के लिए डार्क रूम में रखिए। नाउ प्लेस ईच प्लांट ऑन वॉच नाउ प्लेस ईच प्लांट ऑन सेपरेट ग्लास प्लेट। मतलब अलग अलग ग्लास प्लेट लीजिए। ये है बेल जार, ये दोनों अलग अलग ग्लास प्लेट लीजिए। एक के अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखिए और दूसरे को ऐसे ही रख दीजिए। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सारा कार्बन डाइऑक्साइड अंदर से खींच लेगा। कवर बोथ प्लांट विद सेपरेट बेल जार। दोनों को एक अलग अलग बेल जार में रख दीजिए। यूज वेजिलिन टू सील बॉटम। नीचे का सील कर दीजिए वेसिलिन से, जिससे एयर अंदर या बाहर ना जा सके। कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर अबाउट 2 आवर। और उसके बाद उस प्लांट्स को 2 आवर्स के लिए सनलाइट में रखिए। प्लक अ लीफ फ्रॉम द ईच प्लांट एंड चेक फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार इन द अबव एक्टिविटी। अब जैसे हमने इसके पहले वाली एक्टिविटी की थी स्टार्स चेक करने के लिए, सेम वैसे ही इसमें करना है। Pluck a leaf from each plant and check the presence of stars in above activity. Do both the leaves shows the presence of same amount of starch? क्या दोनों सेम अमाउंट ऑफ स्टार्च दिखते हैं? तो नहीं। ये जो ये जो फर्स्ट वाला है उसके अंदर स्टार्च कम होगा, और ये जो सेकंड वाला है उसके अंदर स्टार्च ज़्यादा होगा। क्यों? स्टार्च बनता है कार्बन डाइऑक्साइड से, और वो कार्बन डाइऑक्साइड ये जो वॉच ग्लास है जिसके अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है वो सब कुछ खींच लेगा। इसलिए फर्स्ट वाले के अंदर कम स्टार्च प्रेजेंट होगा और सेकंड वाले के अंदर ज़्यादा स्टार्च। Based on the two activity performed above, can we design an experiment to demonstrate the sunlight is essential for photosynthesis? So far, we have talked about how autotrophs meet their energy requirements, but they also need other raw material for building their body. Water used in photosynthesis is taken up for the soil by the roots in terrestrial plants. Other material like nitrogen, phosphorus, iron and magnesium are taken up from the soil. मतलब फोटोसिंथेसिस के अंदर वाटर रूट्स से एब्जॉर्ब होते हैं, और जो मिनरल्स एब्जॉर्ब होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन और मैग्नीशियम वो भी नीचे सॉइल से मिल जाते हैं। नाइट्रोजन इज एसेंशियल इन नाइट्रोजन इज एसेंशियल एलिमेंट यूज्ड इन सिंथेसाइजिंग ऑफ प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड। नाइट्रोजन है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? वो हम आगे पढ़ेंगे। This is taken up in the form of inorganic nitrate or nitrites, or it is taken up as organic compound which have prepared the bacteria from atmospheric nitrogen। मतलब जो नाइट्रोजन है उसका वो इनऑर्गेनिक मटेरियल है, जैसे कि नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स वो प्रिपेयर होता है बैक्टीरिया से और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से। So let us now go ahead to heterotrophic nutrition. So now heterotrophic nutrition. Heterotrophics means heterotrophs। जो heterotrophs यूज करते हैं वो टाइप का नाइट्रोजन। हेट्रोट्रोप्स क्या होता है? फुल्ली डिपेंडेंट ऑन ऑटोट्रोप्स।
Heterotrophs fully depend on autotrophs for their food. The form of nutrition differs depending on the type and availability of food material as well as how it is obtained by the organism. For example, whether the food source is stationary such as grass or mobile such as deer. मतलब क्या वो चीज़ एक ही जगह पे खड़ी है जैसे कि ग्रास या अलग अलग घूमती रहती है जैसे कि डियर would allow the different in how the food is accessed and what is nutritive apparatus used by the cow or a lion. So now we will see nutrition in amoeba. First, amoeba search the food particles. Then, through the pseudopodia, the food thus through the pseudopodia, amoeba captures the food, and by the help of food vacuole, it will slowly enter to the vacuole, and then amoeba digests it and removes the waste from the pseudopodia. Now, what is pseudopodia? Pseudopodia means the false pseudopodia means the false statement means ऐसा जैसे कि होता तो है पर गलत मतलब नकली होता है जैसे कि कोई भी होल हो जो हमने बनाया हो उसको सूडोपोडिया कह सकते हैं या नकली नकली होल. न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स कैन ह्यूमन बींग का हम एलिमेंट्री कैनाल पढ़ेंगे आज. तो एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है? What is alimentary canal? Alimentary canal is a canal through which the food gets into the body and get out through the body. Means food अंदर जाता है और वहाँ से वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है. वो पूरा जो जगह है उसे हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनल. So let us see this diagram. First, the food is passed through the buccal cavity. Inside the buccal cavity, there are tongue, teeth, and salivary gland. Tongue help to taste the food, then make the food bolus through the help of salivary gland. Teeth help in chewing the food and also for tearing the food. And the salivary gland make the food bolus, so it will easily pass through the esophagus. Now the food is passed through the esophagus. Esophagus is so big. It inside the esophagus there is trachea over here. Here there is gastroesophageal sphincter. Here there is a gastroesophageal sphincter. Then the food goes to the stomach. Stomach has three parts. This is called cardiac region, this is called fundic region, and this is called pyloric region. Now, the stomach also contains three digestive juices called namely HCl, mucus, and
पेप्सिन। So first, these all are related. पेप्सिन मतलब पेप्सिन प्रोटीन्स को छोटे छोटे पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करती है। HCl वो पेप्सिन को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करती है। और म्यूकस जो स्टमक की इनर लाइनिंग होती है, ये जो स्टमक की इनर लाइनिंग है उसको प्रोटेक्ट करती है HCl से। और फूड्स बहुत छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो फिर जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं। जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं तो जब ये पॉइंट होता है वहाँ पे भी एक स्पिंचर होता है जिसे कहते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टिनल स्पिंचर, जो गैस्ट्रो यानी स्टमक और इंटेस्टाइन के स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट्स होते हैं, एक तो इलियम, एक डिओडेनम और एक जेजुनम। इलियम सबसे कॉइल्ड होता है और यहाँ पे होता है। जेजुनम सबसे लीस्ट कॉइल्ड होता है और यहाँ पे होता है। और डुओडेनम बीच में होता है। सबसे ज़्यादा इलियम, उसके बाद डिओडेनम, उसके बाद जेजुनम। और स्मॉल इंटेस्टाइन को कॉइल्ड क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो ऐसे ट्विस्टेड होती है जिसके कारण फूड के अंदर के पार्टिकल्स का अंदर से बहुत सारा न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब हो जाता है। किसके मदद से? विलाई के मदद से। उसके अंदर स्मॉल स्मॉल विलाईज होती है, जैसे कि ऐसे एम ने आपने एम देखा है तो उसके अंदर जो ये छोटी होती है वो ऐसी विलाई होती है। वो सारा न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर देती है। फिर यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन से वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाती है। अब लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं, कोलोन, सीकम और रेक्टम। कोलोन बहुत बड़ा होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक। इस कोलोन को कहते हैं एसेंडिंग कोलोन, इसको ट्रांसफर कोलोन और इस कोलोन को डिसेंडिंग कोलोन। फिर यहाँ पे सीकम होता है और यहाँ पे रेक्टम थोड़ा यहाँ पे होता है। यहाँ पे रेक्टम, ये सीकम और ये पूरा कोलोन। फिर ये क्या करते हैं, जो भी फूड मटेरियल अब वेस्ट प्रोडक्ट बन गई है उसको स्मॉल इंटेस्टाइन से ट्रांसफ़र करके ले जाते हैं एनस तक। अब एनस ऐसा ऑर्गन है जो पहले तो ब्रेन को एक मैसेज पहुंचाता है कि अब सब वेस्ट मटेरियल रिमूव करने का टाइम आ गया। तब हम वॉशरूम जाते हैं और सारा सॉलिड वेस्ट मटेरियल निकाल देते हैं बाय द एनस। So this is human alimentary canal. Now we will study ahead respiration. So respiration के लिए एक बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है, एक्टिविटी 6.4 सॉरी। इस एक्टिविटी के अंदर ऐसा कहा है कि एक टेस्ट ट्यूब के अंदर लाइम डालो, उसके अंदर पानी डालो और मिक्स कर दो अच्छे से, तब वो लाइम वाटर बन जाएगा। उसके बाद उसके अंदर आप ऐसे श्वास छोड़ो या मतलब एयर ब्लो करो अपने मुंह से, तो वो लाइम वाटर है वो
अपना कलर चेंज करके वाइट कर देगा। वो ये क्या इंडिकेट करता है कि हम जो श्वास छोड़ते हैं, मतलब द एयर वी ब्रीद आउट एंड द एयर वी रिलीज फ्रॉम आवर माउथ, इट इज इट इज इट हैज़ मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड, और वो कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर को मिल्की बना देता है। नाउ we can get ahead. Activity 6.5. Take some fresh juice or sugar solution and add some yeast to this. कोई भी फ्रूट जूस या शुगर सॉल्यूशन लो और उसके अंदर यीस्ट डालो। टेक दिस मिक्सचर इन टेस्ट ट्यूब फिटेड विथ वन होल्ड कॉर्क। एक टेस्ट ट्यूब में डालो और उसके ऊपर जो एक काने वाला कॉर्क होता है, स्टॉपर, वो डालो, जिससे वो कोई भी एयर बाहर नहीं आएगी। और वो जो एक होल था उसके अंदर से एक ग्लास की ट्यूब डालो। ट्यूब जैसे कि समझो ये टेस्ट ट्यूब है, उसके अंदर रबर का एक कॉर्क डालो जिसके अंदर एक होल होता है, उसके अंदर से एक ग्लास की ट्यूब डालो डीप, और उसको तब तक उतना अंदर तक डालो जब तक वो जो लेमन जूस या फ्रूट जूस या शुगर सॉल्यूशन डाला हो उधर तक। वॉट चेंज एंड ब्लो द एयर, उसके अंदर आप एयर ब्लो करो तो आप क्या देखते हो, इसका कलर चेंज हो गया होगा। तो ये कहता है कि यीस्ट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण वो लाइम वाटर को मिल्की बना देता है। We have discussed nutrition in organism in the last session. The food material taken in during the process of nutrition is used in cells to provide energy for various life processes. Diverse organisms do this in different ways. Some use oxygen to break down glucose completely into carbon dioxide. मतलब कुछ लोग ग्लूकोज को ब्रेक करके कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि यीस्ट, और इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहते हैं। Take place in yeast during the fermentation. Since this process take place in the absence of air, ये तभी होगा जब एयर बिल्कुल भी होगी नहीं, और जिससे मतलब ऑक्सीजन एक बिल्कुल भी नहीं होगा, और इसे एनाएरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है। So this is the this you have to remember. ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज वो साइटोप्लाज्म के अंदर जाता है, जिसके अंदर 3 कार्बन मॉलिक्यूल प्लस एनर्जी होता है, जिसको पायरूवेट कहते हैं। पायरूवेट उसके अंदर जब ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होगी तो यीस्ट उससे इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यीस्ट इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, और 2 कार्बन मॉलिक्यूल से। अगर ऑक्सीजन थोड़ी थोड़ी होगी तो अवर मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड और एनर्जी प्रोड्यूस होगी। लैक्टिक एसिड से हम जब भी मॉर्निंग में वॉक करने जाते हैं तब हमारे पैरों पे थोड़ा थोड़ा दर्द होता है, जिससे वो क्या होता है, वो लैक्टिक एसिड बन गया होता है हमारे मसल्स के अंदर, और उससे थोड़ी थोड़ी एनर्जी आती है, जिससे हमारे पैर थोड़ा थोड़ा दर्द होता है। अब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन पूरा प्रेजेंट होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनाएगा।
जिसको जो माइटोकॉन्ड्रिया करेगा। आपका स्वेट होता है, आपको पता हो तो, आपको पता ना हो तो मैं कहूँ आपको, जो आपका हम ह्यूमंस बहुत सारा वाटर रिलीज करते हैं। कौन से फॉर्म में? तो एक तो स्वेट, बाद में यूरिन, बाद में जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तब। तो इन प्रोसेस से आप वाटर मॉलिक्यूल्स को निकालते हो। So that's all for today. Thank you and have a nice day. If you like my video, please like, share and subscribe.